चारियारम ताबे औलादे अलीम मज़हबे हनफी जदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हबे नूरे खुदा ना कि सौरा पीर कामिल कामिला रहनुमा। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, ज़बीन एहतिशाम, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम भाई और बहनों, today inshallah ta'ala with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala we are going to discuss about the importance of udhiyah or qurbani, or sacrificing animals in the way of Allah subhanahu wa ta'ala on the occasion of Eid al-Adha, second Eid. There are so many misconceptions in our youngsters and in our society about this occasion or event. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Offer prayer and do qurbani or udhiyah or sacrifice animals in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So it means this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So if there is any sabut or nas mawjood or present in the Quran, so it means this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala and it is compulsory for us to do that. अब बाज़ लोग ये कहते हैं और बड़े अजीब किस्म के लोगों के तसव्वुरात हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट टाइम में लोग डिस्कस करते रहते हैं. People they ask different questions that Imam Sahib, is this qurbani or this amal or this action is only once in a life or shall we do every year? Even I received a call recently. One of my friends, he asked this question and which made me discuss today this. And he said, Imam Sahib, one of my friends, he was saying that I did a qurbani mashallah last year. So this is enough now. We shouldn't do again. So my brothers and sisters, we need to understand that qurbani or this amal, qurbani in some simple words, when we sacrifice animal on the day of Eid al-Adha, the second Eid, this is the sunnah of Hazrat Ibrahim and this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we need to do this action every year on the occasion of Eid al-Adha. तो ये बात ज़हन में रखें कि ये जिंदगी में एक दफा नहीं है, ये जिंदगी में एक दफा नहीं है. जिस तरह as we give charity, as we pay zakat every year in the month of Ramadan, often people they give their charity or zakat. Otherwise, when there is full year, when there is full Islamic year, then you need to pay zakat. जब आपको साल पूरा हो जाए, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, तो आप पर zakat देना जरूरी हो जाता है. लेकिन जिस तरह वो हर साल हम देते हैं, इसी तरह जो कुर्बानी है ये भी हर साल देनी पड़ती है. As we pay zakat every year, similarly on the occasion of Eid al-Adha, we need to give qurbani every year. This is not just once a life. ये बड़ा अजीब किस्म का जो है वो सवाल है, मगर ज़ाहिर है बाज़ लोगों को नहीं इल्म था. तो मेरे ज़हन में पहले तो ये आया कि हज का मौजू मैं शुरू करूं. फिर मैंने कहा क्योंकि अभी थोड़ा ज़हन बना दिया जाए लोगों का, तो क्योंकि बिल्कुल एंड में पता चले तो फिर और एक्सक्यूजेज होते हैं लोगों के. तो ये बात ज़हन में रखें कि दिस इज द सुन्नत ऑफ हज़रत इब्राहीम and then this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every single year the Prophet alayhi salatu wassalam, he used to give qurbani or he used to do udhiyah. Udhiyah अरबी में कहते हैं qurbani को. तो अब ये ना सोचेंगे ये udhiyah पता नहीं उनको नमी है. ये जो udhiyah है इसको अरबी में qurbani को udhiyah कहते हैं. और जो मैंने आपके सामने आज पढ़ी है, the verse which I mentioned in front of you and recited, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Offer your prayer and do qurbani. Sacrifice animal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So the people who knows Arabic grammar, they know wanhar is a sigha amr. It means in wanhar Allah subhanahu wa ta'ala giving order to the Muslims. Surely we are living in UK, in this great country,
So whenever we're going to do this, we need to do everything according to the law. Surely we can't do this in our homes or houses. We need to go to the proper, the butcher shops, and we need to give them orders. So surely we will follow the rules. मगर मसला ये है कि ये बात ज़हन में रखना बड़ा जरूरी है कि ये हर साल देना पड़ता है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये सीगा अमर है, वनहर, और कुर्बानी कर और कुर्बानी करो। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर कोई बंदा कुर्बानी नहीं करता, वो वायलेट करता है उस ऑर्डर को जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है। और हदीस सुने इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? ये कुर्बानियां क्या हैं? सहाबा they did this question to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They asked this question to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is qurbani? What is udhiyah? Now listen the answer and the reply of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. He said, "O my Sahaba and companions, this is the sunnah of Ibrahim, your father Ibrahim. This is the sunnah of your father Ibrahim." And then Sahaba, they asked again, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह के नबी हमें ये बताइए कि इन कुर्बानियों में हमारे लिए क्या है? If we will do qurbani, what is the reward for us? Rasul, now listen the answer. How beautiful answer is this? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he replied to the Sahaba, to his companions, "O my Sahaba, if you will sacrifice an animal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you reward equal to each and every hair which that animal will have on his body. Which that animal will have on its body. जो उसके जिस्म पर बाल होगा उसके इक्वल तुम्हें नेकियां मिलेंगी। सहाबा ने आस्क, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ जानवर जो होते हैं उन पर तो बाल नहीं होते। Few animals like sheep and lambs, they have not hairs, उनके ऊपर तो वूल सा होता है। So what will happen then? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, उसके अंदर भी बाल होता है, अल्लाह ताला उस बाल के बदले में भी तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। I never ever read anywhere that any machine or any calculation on the internet or in any book that animal has so many hairs on its body. किसी ने ये लिखा हो कि गोट पर इतने होते हैं, शीप पर इतने होते हैं, काउ पर इतने होते हैं, बफलो पर इतने, यानी countless हैं. It means they have countless hairs. And on the other hand, if we want to derive any reward according to this hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, it means the person who will sacrifice animal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give him countless good deed or countless rewards. वो आप काउंट कर ही नहीं सकते। इससे साबित ये हुआ कि अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है, या अल्लाह ताला उसको इतनी नेकियां अता फरमा देता है जिसको वो कभी गिन ही नहीं सकता। Now often people ask question, Imam Sahab, if you can inform that who should give qurbani, who is eligible to give qurbani? तो ये बात ज़हन में रखें, as to pay zakat, there are conditions. Similarly, if you want to do qurbani or udhiyah, or if you want to sacrifice animal in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, specifically on the occasion of Eid al-Adha, there are conditions. उसके अंदर भी शराइत है। पहली शर्त ये है, the person should be Muslim, वो मुसलमान हो। This qurbani surely is not upon non-Muslims. If you are Muslim, this is first condition. And the second condition, you should be aqil. आपको आकिल होना चाहिए। वो जो आपकी प्यूबिटी की जो एज है उससे आप गुजर चुके हों, आपको अडल्ट होना चाहिए। फिर तीसरी इसके अंदर शर्त ये है कि बंदा आजाद हो। If someone is slave, he is Muslim but he is slave, so qurbani is not wajib upon him. He should be free. Surely everyone is free nowadays. And the other condition, he should be muqim. He shouldn't be musafir. So it means if someone is musafir or traveler, so qurbani is not wajib upon him. और अगली कंडीशन ये है, he should be साहिब निसाब. This is really important condition कि हर बंदा जो है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ये साहिब निसाब पर है, ये साहिब निसाब पर है। अब इस जो है वो चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि who is साहिब निसाब, what is the meaning of साहिब निसाब। जिस तरह आप जानते हैं कि जब हम ज़कात पे करते हैं तो वो बंदा ज़कात पे करने का एलिजिबल होता है जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या इसको अगर आप यूं समझ लें, in pounds, if someone has 2800 pounds,
from whole Islamic year for 360 days, because Islamic year consists of 360 days, और जो इंग्लिश ईयर है वो 365 डेज का होता है। तो अगर कोई साहब निसाब है और उसके पास 7.5 तोले सोना या 2800 पाउंड 360 डेज से है, तो वो बंदा साहब निसाब है। और अगर आप चांदी वाइज कर लें, सिल्वर वाइज कर लें, तो फिर आपको 280 पाउंड आपके पास एक साल के लिए होने चाहिए। अब उलमा ये फरमाते हैं कि गरीब का जो फर्क है, जो गरीब का फायदा है, वो ज्यादा चांदी में है। अब मिसाल के तौर पर हो सकता है किसी के पास 7.5 तोले सोना ना हो, लेकिन चांदी की जो प्राइस है 280 पाउंड, इतना तो हर बंदे के अकाउंट में होता है। अगर मेरे जैसा गरीब है तो अलग बात है, आप जैसे तो अमीरों के पास होना चाहिए माशाअल्लाह। तो ये बात ध्यान में रखें। तो अगर किसी के पास 280 पाउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुर्बानी लगती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ कुर्बानी, अल्लाह का शुक्र है। ये तो फन तबा के लिए मैंने कहा कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। तो ये बात ध्यान में रख लें, समवन इज आकिल, बालिग, फ्री, मुकीम एंड साहिब निसाब, सो इट मींस ही शुड मस्ट गिव कुर्बानी। और यहां पर जो निसाब है, द निसाब ऑफ कुर्बानी इज 280 पाउंड। ज़कात के अंदर तो ये जरूरी है, इफ यू वांट टू पे ज़कात यू नीड टू हैव फ्रॉम लास्ट 360 डेज। मगर कुर्बानी के लिए ये है कि अगर कुर्बानी के दिन में भी आपके पास 280 पाउंड हैं, इट मींस यू आर साहिब निसाब। अब एक और बड़ी अजीब सी मिसकंसेप्शन है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है लोगों के ज़हनों में। Few people they say, as I mentioned at the beginning of my speech, a few people they say that we should only do this once in a life. This is wrong. कुर्बानी is every year. और फिर बाद लोग ये करते हैं कि वो रोटेशन करते हैं, रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ईयर उन्होंने अपने बाप की तरफ से कर दी, अपने वालिद साहब की तरफ से। सेकेंड ईयर दे विल डू फ्रॉम मदर साइड, देन फ्रॉम वाइफ साइड, देन फ्रॉम हिज साइड। अगर उनके बच्चों में से कोई बालिग है, अडल्ट है, उसके साइड से कर दी। ऐसा नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि कुर्बानी किस तरह करनी है। मेरे से जब ये बंदे ने सवाल पूछा कि मैंने एक दफा कर लिया जिंदगी में तो इतनी काफी है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल। लोगों को तो पता ही नहीं है। कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी क्या है? वाजिब है। एंड वाजिब इज अ बिट लेस देन फर्ज, यानी ऑलमोस्ट दिस इज कंपल्सरी फॉर यू। इट इज कंपल्सरी फॉर यू। कुर्बानी और उद्हिया and to sacrifice animal on the day of Eid al-Adha 3 days, this is compulsory for you. तो ये बात ध्यान में रखें कि you can't do कुर्बानी in rotation. आप रोटेशन में कुर्बानी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी किस तरह हो सकती है। मेरा काम है बताना, आप क्या मर्जी आप करें ना करें, मगर मिंबर तो यही कहता है कि ये करना जरूरी है। और मिंबर इसलिए कहता है कि हजूर की शरीयत ये कहती है कि कुर्बानी हर साल देनी चाहिए। अब सुने, मिसाल के तौर पर जो बंदा साहिब निसाब है, अब आपने जब कुर्बानी देनी है, आप पेन लेकर और बुक लेकर बैठ जाएं। अब आपको बताऊं कि साहिब निसाब कैसे हैं, 280 पाउंड कैसे बनेंगे। It doesn't mean you should have only sona, it doesn't mean you should have only gold and silver, or you should have only some bank balance। आपके पास कुछ बैंक बैलेंस हो, आपके पास कुछ निसाब हो, आपके पास कुछ पैसा हो अकाउंट, इससे सिर्फ ये मुराद नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं जो आपकी बेसिक कमोडिटीज से ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है कि उसके पास डेकोरेशन के पीसेस हैं घर के अंदर। अब ये आपकी जरूरत की चीजें तो नहीं है डेकोरेशन की। इसी तरह एक बंदे के घर में बहुत सारे बेडरूम्स हैं, आप यूज 1 या 2 बेडरूम करते हैं, तो बाकी रूम जो हैं वो इससे ज्यादा हैं। उनकी वैल्यू लगा लें कि कितने रेंट पे चढ़ते होंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। आपके पास यू हैव 2 to 3 मोबाइल्स, माशाल्लाह स्मार्ट मोबाइल्स, दे रियली एक्सपेंसिव, तो उनकी कीमत को निकालें। उसके अलावा अगर आपके पास रिंग्स हैं, रिंग्स की प्राइस को निकालें आप। इफ यू हैव मोर देन 1 कार, उसकी प्राइस को निकालें आप। इसी तरह आप अपनी बेसिक कमोडिटीज क्या है? आपका बेड है, आपका एक फोन है, एक टीवी, अगर आप इस्लामिक नॉलेज के लिए टीवी रखा हुआ है आपने, इसी तरह रेडियो है अगर अच्छी बातें सुनने के लिए रखा हुआ है। इसी तरह आपने कार एक जरूरत के लिए रखी हुई है, एक घर है आपका ज्यादा जरूरत पर है। इसके अलावा जितने भी आपने अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिए हुए या एक से ज्यादा है, वो सारा का सारा आपकी बेसिक नीड से ज्यादा है। तो इससे साबित यह हुआ, जितना मेरे पास नॉलेज है या जितना मेरी नजर है आप लोगों पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे कुर्बानी के लिहाज से साहिब निसाब है। अल्लाह का फजल है। अगर हालत देखनी है तो जाके अफ्रीका में देखे ना,
उन बेचारों की क्या हालत है, हमें अल्लाह ने दिया हुआ है, हम उसके बावजूद कुर्बानी नहीं देते। तो क्या करें जब कुर्बानी देनी हो? आप देखें आपके बच्चे जो बालिग है, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है, इट्स ओनली फॉर बालिग पीपल, फॉर अडल्ट्स, और वो भी इस्लामिक जो अडल्ट होता है, जो प्यूबर्टी की एज उससे आगे निकल जाए, वो मेरा ख्याल यही उसे इंग्लिश में कहते हैं। खैर उससे जब आप आगे निकल जाए, अपने बच्चों को देखें, अगर वो बालिग हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, वो अपने सारे के सारा अपना जो है वो कैलकुलेशन करें। इफ दे हैव anything equal to 280 pound, more than their basic needs, as I just mentioned, so it means they are eligible to do कुर्बानी, उनको कुर्बानी करनी चाहिए। और फिर एक ये है कि बात लोग अक्सर आते हैं, लोगों की मोहब्बत है माशाअल्लाह, they have love of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इमाम साहब माशाअल्लाह you informed us about कुर्बानी, आपने हमें कहा कि कुर्बानी देनी चाहिए, माशाअल्लाह we are giving one share for the name of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी बात है, हजूर ने उम्मत के लिए की हैं कुर्बानियां, बड़ी बात है। अल्लाह ने दिया हो कि अपनी कुर्बानी के साथ हजूर की भी कुर्बानी करें। आप इंशाल्लाह ईद के मौके पर मुझसे सुनेंगे। लेकिन मिसकॉन्सेप्शन ये है, इफ कुर्बानी इज वाजिब अपॉन यू एंड यू आर नॉट डूइंग कुर्बानी फ्रॉम योर साइड, सो इवन इफ यू आर डूइंग कुर्बानी फ्रॉम योर फ्रॉम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम योर फादर साइड और मदर साइड, बट यू आर नॉट डूइंग कुर्बानी फ्रॉम योर ओन साइड, so your qurbani is still there, आपका तो वजूब अभी भी बाकी है। So first of all Islam says, and the Sharia says, Islamic jurisprudence says, first of all you need to do qurbani from your side। अगर आप पर वाजिब है अपनी कुर्बानी दो, फिर आपकी बीवी, अगर आपके अंदर जो कस्टोडियन है, सारे पैसे आपके पास होते हैं, सब जो अडल्ट हैं, बालिग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी दें, और फिर एक नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ से भी दे दो। इसी तरह लोग अपने जो दुनिया से जा चुके हैं, जो the people have passed away, from people they give कुर्बानी from their side, माशाल्लाह you can give, this is नफली, this is सदका, मगर पहले सबसे पहले आपको अपनी तरफ से कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखें, अगर आपके पास पैसा है, मैंने आपको 280 पाउंड बता दिए, आप कुर्बानी दें, आपकी बीवी के पास है वो कुर्बानी दे, आपके बच्चे बच्चियां, आज तकरीबन मैं देखता हूँ सबके पास एक्स्ट्रा चीजें, इतनी ज्वेलरी, सब कुछ होता है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। और नाबालिग की तरफ से कुर्बानी नहीं है, लेकिन आप करना चाहें फिर भी कर सकते हैं, वो बेहतर है, मगर वो वाजिब नहीं है। फिर सबसे पहले और एक और बड़ा अजीब मामला है, समटाइम कुर्बानी के ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वहां पर फॉर एग्जांपल बड़ी चीप कुर्बानियां होती हैं। ऑफन पीपल डिस्कस, माशाल्लाह इमाम साहब वी वर वाचिंग दैट चैनल एंड देयर वाज कुर्बानी फॉर 20 पाउंड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कुर्बानी 20 पाउंड, 1000 रुपए का तो पाकिस्तान में देसी मुर्गा मिलता है यार, तो 20 पाउंड की तो सारी कुर्बानी करने चल रहे हो। अब इस बारे में शरी मसला सुन ले। सबसे ज्यादा जरूरी यह है, सबसे पहले अगर आप कुर्बानी करना चाहें अपने मुल्क में करें, अपने रिश्तेदारों में करें। सबसे ज्यादा अफजल यह है कि अपने रिश्तेदारों में करें, और अगर अल्लाह ने आपको और दिया है तो अपनी कुर्बानी अपने मुल्क में करने के बाद फिर दूसरी जो कंट्रीज है वहां पर करें। ये रिसेंटली यहाँ पे हमारे लीड्स के अलामा साहब मुझसे डिस्कशन कर रहा था, यानी मैं डिस्कशन करके आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी ने जान छुड़ा ली 20-20 पाउंड की कुर्बानियां लेकर, अगर किसी ने सदका नफल किया, अच्छा किया, अपनी कुर्बानी कर ली, इधर भी दे दी, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, गलत गुमानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी ने जान छुड़ा ली तो फिर उससे मामला ये हुआ कि आपकी कुर्बानी तो जाया हो गई, क्योंकि कम से कम एक जानवर जो छोटा है, जैसे बकरा है, भेड़ है, इसी तरह ये जो शीप वगैरह है, ये कम से कम एक बंदे की तरफ से। फिर लोग कहते हैं कि हम पूरे घर की तरफ से एक जो है बकरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बकरा एक बंदे एक फर्द की तरफ से है। जो बड़ा जानवर है जैसे कैमल है या काऊ है या बफलो है, देन देयर आर 7 शेयर्स, वो आप जो है वो 7 लोगों की तरफ से, 7 लोगों की तरफ से कर सकते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा कि अपनी तरफ से मुर्गा भी कर सकते हैं। और तुम दसो भाई ना मुर्गे वाले को कितने समझाइए असी, तो यह बात ध्यान में रखिए, मुर्गे की कुर्बानी नहीं होती हजरत, कम से कम बकरा हो या शीप हो या गोट हो, लैम्ब हो, या इसी तरह खाओ या बफलोज हो। तो ये मसाइल हैं, इन चीजों को समझें। तो सबसे पहले अपने लोगों में करें, और जो चैरिटीज है मुख्तलिफ उधर भी आप करें। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे अफजल ये है, जो मामला मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, अपनी जान न छुड़ाएं। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अपने मुल्क में पहले करें, अपने मुल्क में करें, अपने लोगों में करें। अपने मुल्क वाले लोगों देने के बाद अगर और लोग हैं तो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा हक बनता है कि हम वहां पर नफली दें। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 20 पाउंड इतनी की लगाई है और 2-3 आप कुर्बानियां कर देंगे, कौन ही गरीब हो जाएंगे। वहां पे आप देखें कि हालात कैसे चल रहे हैं, हो सकता है वो बेचारे कुर्बानी पे गोश्त खाते हों। तो कोशिश करेंगे उन लोगों को भी आप जरूर दें। अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझने की
तौफीक अता फरमाए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंशाल्लाह फोन आपको वेबसाइट से मिल सकता है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, किसी नमाज में पूछ सकते हैं। मगर कुर्बानी करनी बड़ी जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पाकिस्तान में कई सालों से हम कर रहे हैं। वहां पर अगर कोई साथी मेरे साथ हिस्सा मिलाना चाहे, कोई जानवर लेना चाहे तो वो ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से शरीय लिहाज से जो मामला पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।